There was a time when I myself have suffered with procrastination. I had all these big goals and dreams, but I always found myself pushing things off, putting things off. I'm sure you can relate. So here's the thing, प्रोक्रास्टिनेशन ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ओवरकम नहीं किया जा सकता है. प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको कि अगर अच्छे से मैनेज किया जाए ना तो उसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है. एंड ट्रस्ट मी, वंस यू ओवरकम योर प्रोक्रास्टिनेशन, इट इज़ अ गेम चेंजर व्हेन इट कम्स टू पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेस. सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है. व्हाट इज़ प्रोक्रास्टिनेशन? इट इज़ बेसिकली अ हैबिट of putting things off. Putting things off means you're delaying it for some reason, and reasons could be maybe you are scared of the task, maybe you are just lazy, maybe you are afraid of the results, or just lack of motivation. I'm sure you must have also been through that situation where you have a pending task but you always find yourself scrolling through social media, binge watching shows on Netflix, but not getting those things done that are your utmost priority at that moment. But you know what, अगर आपके साथ ऐसा होता है then you are not the only one, because the best of us have also been through this. It's just that people who do not procrastinate have learned how to manage it better. So firstly you need to realize the procrastination tendencies. आप जब चीज़ों को procrastinate करते हो तो आपको realize होना important है कि okay, you are actually procrastinating and you're not doing the things that should be done at the moment. So firstly you need to realize this thing. Let's talk about procrastination cycle. So procrastination cycle में क्या होता है, हम चीज़ों को put off कर रहे हैं and because जो हमारा important task है उसको delay कर रहे हैं तो हमारे task जो हैं वो pile up होते जाते हैं, and because these tasks are getting piled up, again we don't feel like doing it anymore. हमें फिर और मन नहीं करता हमारा करने का, क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं करने को. So जैसे जैसे हमारे tasks pile up होते जाते हैं वैसे हमारा stress बढ़ता जाता है, and because of this stress we are not able to do those tasks anymore. किसी भी चीज़ में ना आपका एक short term satisfaction और gratification होता है और एक long term fulfillment of goals होता है. तो मैं एक recently podcast भी सुन रही थी by a brain surgeon. So he was also scientifically explaining it. What I understood is कि हमारा एक lower brain होता है, एक upper brain होता है. हमारा lower brain is very similar to those of animals. हमारा lower brain जो है ना short term gratification पे focus करता है. हमारा upper brain, I'm not sure if this is the structure but this is how I imagined it. हमारा जो upper brain होता है वो long term goal fulfillment पे focus करता है. Basically we have to learn to balance these two things. We can't completely let go of the lower brain because that is also a part of us, right? वो भी हमारा ही part है, but we have to find a balance. हमारे upper brain को जैसे पता होता है कि eating junk is not good for us in the long term, but हमारा lower brain जो है that will crave for junk food, that will crave for sugar because उसको instant gratification चाहिए, उसको तुरंत fulfill होना है. When you do things like yoga and meditation, it basically helps to align your these two brains. हमारे जो procrastination है ना वो भी इट्स पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन. वो हमारे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है. लाइक अभी हमने एक मूवी देख ली, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच कर लिया तो इमीडिएटली हम खुश हो गए. लाइक उस मोमेंट में तो हम खुश हो गए, बट इफ़ यू सी योर लॉन्ग टर्म गोल कि आपको एक्चुअली लाइफ में कुछ करना है, यू कुड हैव रेड अ बुक, और यू कुड हैव लर्न समथिंग न्यू, और यू कुड हैव मे बी शॉट दिस वीडियो. सो इफ़ यू सी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली यू डिड नॉट डू समथिंग टुवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म गोल, रादर यू फोकस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन. सो नाउ लेट्स talk about few strategies how you can overcome procrastination and actually get things done. So the first one is set clear goals. सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आपका एक गोल होता है ना तो आप ड्रिवन रहते हो टुवर्ड्स दैट गोल. सो फर्स्ट सेट अ गोल एंड उसके बाद उस गोल तक पहुंचने के लिए ब्रेक दैट गोल इनटू स्मॉल टास्क्स. इट्स लाइक क्रिएटिंग योर वेरी ओन रोड मैप टू सक्सेस, बिकॉज जब आपका एक रोड मैप बना होता है तो इट्स लेस लाइकली दैट यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड विद अदर थिंग्स एंड इट्स ईजियर टू स्टे ऑन ट्रैक. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड प्लान. नाउ टॉकिंग अबाउट टास्क्स, एक बार आपने टास्क्स को ब्रेक डाउन कर लिया फिर उसके बाद आपका एक प्लान होना चाहिए. देयर नीड्स टू बी अ स्ट्रक्चर एंड प्लान टुवर्ड्स रीचिंग दैट गोल. बिकॉज जब आपका एक स्ट्रक्चर होता है ना दिमाग में, यू डोंट गो हैबिजर्ड, लाइक यू आर फोकस टूवर्ड्स योर टास्क, एंड उसमें आपका जब प्रोग्रेस होता है तो भी आपको पता चलता है, एंड जब आप चीज़ें नहीं कर पाते हो तो भी आपको रियलाइज होता है. व्हेन देयर इज अ स्ट्रक्चर इन प्लेस इट्स ऑलवेज ईजियर टू रीच योर गोल एंड be more focused towards it. So you can either create a daily to-do list or you can create weekly tasks.
सो मैं क्या करती हूँ, मैं डेली का टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि आज मुझे ये चीज़ें करनी है, एंड व्हेन आई कीप डूइंग देम आई कीप ऑन टिकिंग देम ऑफ. So as you keep ticking things off your list, you also feel a sense of accomplishment कि आपने कुछ किया आज पूरे दिन में, and you also stay driven towards your goal. Now the next one is cultivate positive mindset. So ये आपने बहुत सुना होगा कि positive mindset होना important है. In fact मेरा जो पहला podcast था वो इसी पे था कि how to shift from a negative mindset to a positive mindset. Now positive mindset इतना important क्यों है, and सब लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? किसी भी चीज़ को करने या देखने का जो आपका नज़रिया होता है ना, उसको माइंडसेट बोलते हैं. जैसे किसी भी एक सिचुएशन को लोग अलग अलग तरीके से परसीव कर सकते हैं. कुछ लोग होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव देख लेते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं जो कितना भी अच्छा हो जाए दे आर ऑलवेज अनहैप्पी, और दे आर थिंकिंग कि इससे कुछ बेटर हो सकता था. देर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. सो व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, आप किसी भी चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हो. एंड ऑल्सो यू नो व्हेन यू हिट रोड ब्लॉक्स ऑन द वे, बीच में हो सकता है कि काफ़ी बार आप फेल हो जाओ, आपका कुछ टास्क था एंड मे बी यू नॉट एबल टू डू इट, मे बी यू फेल्ड इन इट. अगर आपका एक नेगेटिव माइंडसेट रहेगा ना, तो आप सारा होप लूज़ कर दोगे, एंड आप उसके बाद अपना काम कर ही नहीं पाओगे. यू विल नॉट बी फोकस्ड, एंड देन प्रोक्रास्टिनेशन विल टेक ओवर एंड मेक यू पुश योर टास्क्स मोर, क्योंकि आपका माइंडसेट ऑलरेडी नेगेटिव है. सो इट्स वेरी इजी फॉर प्रोक्रास्टिनेशन टू टेक ओवर एंड टेल यू कि काम वाम छोड़ो, लेट्स वॉच नेटफ्लिक्स. एट दैट टाइम इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गेट अप इवन आफ्टर यू हैव फेल्ड. एंड अगर आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट है ना, तो आपको पता होगा कि फेलियर is just a stepping stone towards success, and that is why you always need to have a positive mindset. Now the next one is utilize the 2-minute rule. 2-minute rule ये कहता है कि अगर आपका कोई भी टास्क जो कि आपको लगता है कि 2 मिनट के अंदर हो सकता है, उस टास्क को इमीडिएटली कर लो. जैसे आप वो टास्क करोगे, you will feel a sense of accomplishment कि आपने कुछ किया. And the second thing that will happen is you will build a momentum कि आपने एक टास्क किया, देन यू माइट फील लाइक डूइंग अनदर टास्क. यू विल फील यू नो गुड अबाउट डूइंग थिंग्स, एंड यू नो एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, एंड यू माइट फील लाइक डूइंग मोर टास्क्स. सो दैट इज अनदर थिंग दैट विल हैपन टू यू इफ यू फॉलो दिस 2-minute rule. नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट इज manage distractions and temptations. Now for example, if I'm shooting this video and बाहर अगर रोड पे कोई बहुत ज़ोर से हॉर्न बजाने लग जाए एंड मेरा विंडो ओपन है एंड मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता है कि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा ये वीडियो बनाने में. सो टू ओवरकम दैट, वीडियो बनाने से पहले ही मैंने इस रूम को साउंड प्रूफ कर लिया. लाइक आई शट ऑल द विंडोज़, आई शट ऑल द डोर. व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन योर टास्क, यू वांट least resistance, you want least distractions, because our mind is very easily distracted. हम लोग बहुत easily distract हो जाते हैं. At least some people like me. For example, my husband doesn't get distracted so easily, but I get distracted very easily. Even if I hear something like khat-pat going around me, I'll start thinking about it. So when you know that you get distracted easily, you need to manage it accordingly. जब आपको पता है कि आप काम करने जा रहे हो, तो make sure कि there is least distraction around you. हमारी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है वो है हमारा फ़ोन, एंड ये हम सबको पता है कि हम सबसे ज़्यादा अपने फ़ोन से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं. वॉट यू हैव टू डू बिफोर डूइंग एनी टास्क इज़ आपको अपने फ़ोन को साइलेंट कर देना है. सो व्हाट आई डू इज़, मैंने अपने मैक्सिमम नोटिफिकेशंस से 95% ऑफ द नोटिफिकेशंस आई हैव टर्न देम ऑफ. मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है. I don't want to know what kind of offers Paytm is giving me or Google Pay is giving me. ये मेरी utmost priority का नहीं है. बट जब ये नोटिफिकेशन आएगा मेरे फ़ोन में, मे बी इट विल वाइब्रेट और मेक अ साउंड जिससे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी, मुझे पता है. तो मैंने ये सबको साइलेंट कर दिया है. Those notifications that do not require your attention needs to be turned off. Only those notifications that you think like WhatsApp, जिसका कि आपको लगता है कि शायद कुछ अर्जेंट हो सकता है, those notifications you keep it on, but then you silent your phone for that period of time so that you don't get distracted by it. बाकी आपको इंस्टाग्राम पे कभी किसी ने आपका फ़ोटो लाइक किया तो उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको नहीं ज़रूरत है. यू डोंट नीड टू सी इट इमीडिएटली. व्हेन यू ओपन इंस्टाग्राम यू विल सी एनीवे, राइट? सो किसी का कमेंट, किसी का लाइक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बीट एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, you don't need to see the notifications immediately. So turn these notifications off if you really want to stay in a distraction free environment. In fact, turn it off forever.
एक और चीज़ जो मैंने की है वो ये है कि मैंने अपने नोटिफिकेशंस को स्केड्यूल कर दिया है कुछ ऐप्स के नोटिफिकेशंस को। फॉर एग्जाम्पल इन शॉर्ट्स, यू नो दीज न्यूज़ नोटिफिकेशंस ये पूरे दिन भर आते रहते हैं। समटाइम्स यू डोंट नीड देम इमीडिएटली, राइट? अगर आपने उसको स्टैक कर दिया है, आपको रात भर जितनी भी चीज़ें हुई हैं सब कुछ मॉर्निंग में आ जाएगा एक साथ। सिमिलरली मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी हुआ है वो आपको इवनिंग या नाइट में आ जाएगा एक साथ। सो यू कैन स्टैक एंड स्केड्यूल योर नोटिफिकेशंस एट पर्टिकुलर time. The point is कि you have to think of ways to avoid distraction if you really want to get your work done. Now the next one is practice the Pomodoro technique. Now Pomodoro technique बहुत interesting है। ये बोलता है कि you work intensely for 25 minutes. आप 25 मिनट तक पूरे फोकस के साथ काम करो and then for 5 minutes you take a break. बेसिकली इट्स लाइक क्रिएटिंग दैट रिवॉर्ड मैकेनिज्म कि आपने इतना काम किया तो आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, एंड उस ब्रेक में देन यू चेक योर फोन, यू डू वट एवर यू वॉन्ट, यू ईट, टॉक टू योर फ्रेंड, बट देन अगेन आफ्टर 5 minutes यू गेट बैक टू वर्क एंड देन वर्क अगेन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन for another 25 minutes. So what this technique does is it boosts your concentration and prevents burnout. So those were the few things that have really helped me in beating procrastination, and that is why I wanted to share this video with you all, and I'm sure this will help you if you try them. Let's recap all the strategies once again. The first one was set clear goals. पहले अपना एक गोल डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, बिकॉज व्हेन यू हैव अ गोल इट्स ईजियर फॉर यू टू स्टे ऑन ट्रैक एंड बी फोकस्ड. Number 2, plan your actions. Because when there's a plan in place, then you know what to do next and you have something to look forward to. And because of that, you don't tend to get distracted a lot. Third one was foster a positive mindset. पॉजिटिव माइंडसेट होना इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपके साथ अगर कुछ भी नेगेटिव भी हो जाए, यू नॉट एबल टू डू थिंग्स, देन यू डोंट गेट एकदम से डिमोटिवेटेड ना हो जाओ कि नहीं मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा. यू नीड टू ऑलवेज हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट सो दैट यू हैव पॉजिटिविटी एंड यू कैन चैलेंज दोज नेगेटिव थॉट्स एंड से दैट नो, आई नो दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स माई सक्सेस. द नेक्स्ट वन वॉज फोस्टर अ 2-minute रूल. कोई भी चीज़ आपको लगता है कि 2 मिनट में या उसके अंदर हो जाएगी तो उसको इमीडिएटली कर लो. द नेक्स्ट वन वॉज मैनेज डिस्ट्रैक्शंस. जो चीज़ें आपको पता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं या करने वाली हैं, उसको पहले से ही यू नीड टू रिमूव दोज डिस्ट्रैक्शंस सो दैट व्हेन यू आर वर्किंग एंड व्हेन यू आर फोकस्ड यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दीज थिंग्स. द लास्ट वन वॉज पोमोडोरो टेक्निक. Pomodoro technique says that you work intensively for 25 minutes and after that you reward yourself with a 5-minute break. This helps you prevent burnout and helps you stay focused throughout. So that's it for this one. I hope you all enjoyed it. Let me know how did you like it in the comment section down below. I love reading your comments. So please make sure you write down your thoughts. If you are new to the channel, please make sure you hit that subscribe button, and also while subscribing, please do not forget to hit that bell icon. And अगर आप इसको कोई भी podcast streaming platform पे सुन रहे हैं, then please make sure you follow me because I have just started out and your support will mean a lot to me if you help me by sharing this podcast with your friends and colleagues. And yep, so on that note, I will end this one. I'll see you again very soon in my next one. Till then, bye.